Yes, good evening, everyone. So our session time is 9 p.m. So kindly join everyone, please, right? So in time, so we can complete it in time. So please join on proper timing. So here, I don't like rely on recordings. Some people might be thinking like, even if we join late, then uh, recording will be there. So don't rely on only recording. It is only your seriousness and how you are working and your seriousness towards the class जो होता है ना वही important रहता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी रिकॉर्डिंग तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इफ़ यू वांट रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस सेशंस ऑलरेडी इट इज़ देयर तो वो देख सकते हो आप फिर ठीक है तो क्लास भी नहीं करने की ज़रूरत है फिर आपको तो प्लीज़ बी ऑन टाइम बी पंक्चुअल सो इट ठीक है एक आधे बार मैं लेट होता हूँ तो चल जाता है राइट बट यू शुड नॉट बी लेट so please be there and I'm just recording the things so even if someone is listening after the session then also they will get this particular thing right so let's start the session today AWS global infrastructure was our previous session तो उसमें हमने देखा है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है AWS का तो उसमें क्या क्या आता है so there are so many things that are involved while creating the AWS cloud. So we just seen two parts of that, like region and the availability zone. Which one is which one is greater? Region is bigger or availability zone is bigger? Which one is bigger? Region or availability zone? It region is bigger, right? So in region, how many availability zones we have? Minimum, sorry, minimum. Yes, it is minimum three. It has to be more than three, right? Minimum three should be there in a availability in a region. We have minimum 3 plus availability zones. So it is a mandatory condition for declaring a region as a region for having multiple availability zones. What is the reason to have a multiple availability zone? Why we are keeping multiple availability zones? What is the reason behind it? Maintain high availability, right? Data replication, data redundancy, right? So everything is correct. So data loss नहीं बोल सकते हम लोग, but data should be available. ठीक है उसके नाम में ही है कि अवेलेबिलिटी जोन सो टू मेक हाईली अवेलेबल सिस्टम और टू मीट एच ए हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट वी रिक्वायर्ड मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स तो हमको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स लगते हैं सो ऑल अवेलेबिलिटी जोन्स exist in a same geographical region sorry no same geographical same location सपोज अभी तीन अवेलेबिलिटी जोन है एक रीजन में तो तीनों की तीनों अवेलेबिलिटी जोन सेम लोकेशन पे होंगे क्या नहीं they should be separate from each other they should be separate from each other having identical or isolated network everything power supply सब चीज उसका अलग होता है ठीक है तो इवन इफ वन ऑफ द अवेलेबिलिटी जोन इज डाउन तो दूसरे जो दो अवेलेबिलिटी जोन है वहां से आपको सपोर्ट मिलता है गेटिंग माई पॉइंट सो वॉट एवर मे बी द रीज़न तो नेचुरल क्लैमिटीज़ है या फिर कुछ साइबर अटैक हो गया जो भी हो गया बट एक रीजन डाउन एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन होता है तो हमारे पास और दो अवेलेबिलिटी जोन रेडी टू सर्व होते हैं सो दैट्स द रीज़न वाई AWS is keeping minimum 3 plus availability zones correct so that is the thing currently how many availability zones are there जस्ट राउंड फिगर ठीक है 105 है नहीं भी याद आता है तो चलता है कोई दिक्कत नहीं है हाउ मेनी रीजन्स वी हैव करंटली एटलीस्ट रीजन याद रहना है आपको 33 रीजन्स है अभी ठीक है नंबर भी अच्छा है याद भी रह सकता है सो करंटली वी हैव 33 बट स्टिल दैट नंबर इज नॉट फिक्स्ड इट विल इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं होगा इंक्रीज डे बाय डे एज AWS इज एक्सपांडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो तो बढ़ता ही रहेगा सो आई टोल्ड यू टू रिमेंबर टू रीजन्स व्हाट आर दोस टू रीजन्स आई टोल्ड यू टू रिमेंबर टू रीजन्स What are those two regions?
One first one is Mumbai region, very good. Another one is North Virginia region. North Virginia region. So which one is the first and famous region? North Virginia. So North Virginia is famous and very first region of AWS. So whenever AWS launches new service, जब भी AWS नया सर्विस लॉन्च करता है ना, नया सर्विस जो भी उनका R&D होता है, फिर जो भी नया सर्विस आता है, तो वो जो नया सर्विस होता है वो पहले कुछ रीजन में लॉन्च करेगा, तो वो नॉर्थ वर्जीनिया में आपको मिल जाता है सर्विस। सो ऑल द सर्विसेज यू हैव देयर इन अ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन। सो पहले ट्रायल उनका नॉर्थ वर्जीनिया में होता है, उसके बाद फिर अदर रीजन्स पे वो लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। सो नॉर्थ वर्जीनिया इज अ रीजन वेयर they will test the new services. Okay. So how many availability zones we have in a North Virginia? We have six availability zones. Six availability zone. What is the notation for North Virginia region? Notation क्या है North Virginia का? The notation is US East 1. ठीक है, याद नहीं भी रहता है तो स्लोली तुम खुद याद रखोगे इसको, याद रखने की भी जरूरत नहीं आपको, ठीक है, बट ध्यान में रखो, अगर रहता है तो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस से आ जाएगा ये। US East 1 is a North Virginia region. It is the first region of AWS and it is most like all the services are there in a North Virginia region. And it's the biggest region of all other regions. So US East 1. Next one, Mumbai. Mumbai इसलिए कि हम लोग most we are just working most of the time in a Mumbai region. ठीक है? That's why Mumbai region is also important. What is the notation of Mumbai region? We are using AP South 1. Very good. Very good. AP South 1. How many availability zones we have in a Mumbai region? Three availability zones. Good. So it is not that we are only learning in a Mumbai. So you need to remember Mumbai. But in your company, you might be using so many other regions also. तो आप लोग फ्रैंकफर्ट रीजन भी यूज कर रहे होंगे, फ्रैंकफर्ट रीजन है, ईयू सेंट्रल वन है, देन ओरेगन रीजन है, यूएस वेस्ट टू, देर आर सो मेनी अदर रीजन्स आल्सो। सो कितने रीजन्स है टोटल? 33 रीजन्स है। तो ऐसे नहीं कि सब चीज सब रीजन्स आपको पता होने चाहिए, बट it is not that only you are working in a Mumbai, depending upon the client, depending upon so many other factors, we will be choosing the region. So many people will ask you in an interview that how will you choose the region. Suppose अभी आपके पास एक client आता है, client is some customer of AWS, right? So कभी कस्टमर आता है आपको बोलता है कि हाउ यू आर गोइंग टू लाइक चूज द रीजन, बिकॉज वो उसको तो सिर्फ सर्वर से मतलब है, राइट? वो खाली आपको बोलेगा कि मेरे को ये एप्लीकेशन है, इसको मेरे को डिप्लॉय करना है या फिर रखना है सर्वर पे। तो आप किस रीजन में सर्वर सेलेक्ट करते हो ना, तो वो भी एक मैटर करता है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट? सो देर आर सम parameters which you are going to consider for selecting the region, correct? So let's have a look there. So मेरे पास उसके factors भी लिखे थे, चलता है। Share. I'm sharing the screen now. Is it visible, everyone? Screen. Good. Um, just wait. It. Okay.
start. So AWS region selection. What we are considering for this region selection, there are few parameters. Start with some of the parameters here. So the first parameter is, let me see here. First one is the customer base. Customer base. What is meaning of customer base? So if you are deploying application and your customer base means customers that are using the service. Suppose if you have a WhatsApp application. So if that WhatsApp application is only accessible to the China region. So where is your customer base then? Where is your customer base? It is in the China. So in which region you are going to deploy the servers? So that depends upon the customers. So where your customers are. So in this case, why we are choosing the customer base? Because to reduce the latency. To reduce the latency. क्या होता है ना कि जैसे आपने अभी सर्वर रखा है ओरिगोन में, ठीक है, ओरिगोन या फिर नॉर्थ वर्जीनिया में रखा है, and you are accessing it from India. So from origin Oregon or no, US, from US to India, there will be a large route. So because of that, there are so many routers switches comes under the path between US and India. So it will again count for some duration or time latency. So that's why we are reducing the latency by keeping servers very near to the customer. तो जो server और हमने देखा था ना server and client. So client should be very near to the server. So to reduce the latency. ठीक है? Any doubt with this? To reduce the latency, we are using the considering this as one of the parameter. ये हम लोग एक पैरामीटर कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स कहाँ पे. अगर कस्टमर्स यूएस में है तो इंडिया के मुंबई रीजन में आपका सर्वर डिप्लॉय करोगे क्या? If your customers are in US, so are you going to deploy the server in a Mumbai region? नहीं, तब नहीं करोगे. तब क्या करोगे आप? It will be good to have very near to the customer. Next, second. What is second? Second one will be the available service. Available service. Available service. What does it mean? Available service. That means if you want to access some service, like, okay, so let me log in. I'll show you why I'm telling you that all the services are not present in all the regions. Some of the services are globally present in all the regions, but some services are not present in all the regions. Like I will just tell you one of the service like service. Okay. There are few services. Okay, let's take the example of Monitron that I already know. Monitron service. Just don't worry about which is the service and all. Just this is one of the service. If you see here, it is in the North Virginia, right? So if I switch to other regions, it is like I am unable to switch. देखो मैं स्विच नहीं कर सकता हूँ. ये पूरा कैसा होगा? ग्रेड आउट हो गया. यहाँ पे मैं क्लिक भी नहीं कर सकता हूँ. देखो, आई एम अनेबल टू क्लिक हियर. बट इफ आई गो टू द सिडनी,
I can click here and I can switch my region to North Virginia to Sydney. Yes, and also Europe, Ireland. So only in these three regions we have a monitoring service. If you want this monitoring service in one of your project, then what you need to do, in which region you will be deploying this service? Only in these three regions, because it is available in these three region only. Apart from this, it is not available. So this is called as the availability of service. Got the point? Yes, this is not available in all the regions. That's why you need to keep, like, you need to think like which in which region you need to deploy, right? So this is the availability of the service. Availability of a service. The service has to be available in that region. So some services are not present in all the regions. So you need to select the region accordingly. Correct? So let's start the third point. अवेलेबिलिटी हो गया, कस्टमर बेस हो गया, फिर होता है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शंस. कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है. सो व्हाट आर दोज नाउ लेट्स assume that Indian government has made some mandatory thing for the AWS to not move data from India to US. Getting my point? सो इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि इंडिया से यूएस में डेटा नहीं ट्रैवल होना चाहिए या फिर यूएस से इधर नहीं आना चाहिए. In that case, what you are doing, you are not transferring data from one location to another location. So which region you are selecting? You are selecting Mumbai for all your services. So that is some like geographical restrictions or government policies that also you need to consider while deploying the services, right? So this is the third. Next, fourth one is the most important, that's pricing. Pricing. So pricing can vary from region to region. Okay. Region wise, we have the pricing. Region wise, pricing can differ. So differ. अभी देखो आपका region select करते हो आप, but while selecting the region, if you are like getting charged for larger pricing, so you may not be expecting that region, right? So अगर जहाँ पे आपको $10 की चीज़ $5 में मिल रही है, अगर वो यूएस रीजन है तो आप यूएस रीजन प्रेफर करोगे, राइट? सो लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ इट वर्क्स. सो एक टूल है AWS pricing calculator, but I will not be like showing you right now this tool. Just for the comparative purpose I am opening, but हम लोग अभी नहीं देखेंगे. मैं वर्क स्पेस का बताता हूँ आपको. वर्क स्पेस प्राइसिंग एक सर्विस है AWS की. आई शो यू वर्क स्पेसेस डेस्कटॉप इन द क्लाउड. तो आपको एक सर्वर मिल जाता है क्लाउड में और उसको आप एज अ डेस्कटॉप यूज कर सकते हो. सो दिस इज वन ऑफ द सर्विस. अभी इसको सर्विस को हमको कुछ देखना है नहीं, जस्ट मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा फोकस देखना है आपको सिर्फ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. So I am just explaining you about the pricing. So AWS workspace pricing, uh, here it is. Amazon workspaces family pricing. So अभी जैसे मैं नीचे आता हूँ, लुक हियर, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है ये. अभी पता चल गया आपको यूएस ईस्ट रीजन है ये, नॉर्थ वर्जीनिया. सो इफ यू सी हियर, एक सीपीयू और 2 GB मेमोरी का कितना कितना प्राइस ले रहा है ये, यहाँ पे मंथली प्राइस देखना कितना है. इट इज 23. यस गाइस, 1 CPU एंड 2 GB मेमोरी का प्राइस कितना है? $23. अब यही चीज मैं क्या करता हूँ, मुंबई में आ जाता हूँ. नाउ सी, एक सीपीयू 2 GB मेमोरी का प्राइसिंग कितना हो गया? 32. सो इज दैट प्राइस इज सेम फॉर एवरी रीजन? प्राइस सेम है क्या सब रीजन में? नहीं है, राइट? सो इफ आई गो टू सम सिंगापुर, it is fixed.
और 32, अब यहाँ पे कहीं पे 27 भी है, फ्रैंकफर्ट में कितना है, 27 है। सो इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो वह ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब मार्केट है, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा सस्ता दे देते हैं फिर मंथली प्राइसिंग, ठीक है। तो नॉर्थ वर्जीनिया इनका ओल्डर रीजन है, तो वहाँ पे थोड़ा कस्टमर बेस बड़ा है, सो दे हैव दिस लेसर प्राइसिंग है। गॉट द पॉइंट? So why we are considering the region? While considering the region, we also consider the pricing, guys. We also consider the pricing, availability of service. Is it there or not? Then customer base. Is it there or not? Like this. Okay. I think now you got the idea how we can select the region selection, right? So let's move on to the next topic here. Just I will not be telling you about the other things. So quickly we will see how we can create the AWS account. Okay. So let's start with the AWS account creation. So you can have a very nice look for the demo. So आज से आपका demo भी start हो जाएंगे. So you need to practice these things. So first thing is that you need to click on the browser and put AWS management console. क्या लिखना है आपको? AWS मैनेजमेंट कंसोल। सो जैसे आप ये करते हो AWS मैनेजमेंट कंसोल, so it will take you to this first site because I am already been logged in multiple times. So मेरा login screen है, I will just log out from here. Okay. AWS एक्चुअली कैश हो गया कंटेंट, AWS मैनेजमेंट कंसोल जैसे क्लिक करूंगे यहाँ पे आपको ये वाला विंडो दिखेगा, ठीक है। मैंने अभी इनकॉग्निटो में खोला है because I multiple times open this particular website, so all the pages has been cached, so it is just taking me to this particular page, but ये नहीं आता है आपके केस में पेज, आपके केस में ये पेज आएगा, ठीक है। सो ये पेज में आपको पहला जो रहता है ना, साइन अप फॉर फ्री एंड AWS, फ्री एंड एक्सेस AWS, सो स्टार्ट विद द फ्री टीयर अकाउंट, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट दिख रहा है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट, इस पे क्लिक करना है बस। Now, whenever you are creating a free account here, अभी देखो इसमें क्या है कि AWS मतलब बहुत अच्छा सपोर्टिव है, तो आपको 12 मंथ तक फ्री यूज करने के लिए देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री टीयर। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? फ्री टीयर अकाउंट। सो इन द फ्री टीयर यू हैव फ्री सर्विसेज फॉर 12 मंथ्स फॉर अ न्यू फ्रेश अकाउंट। अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, नया अकाउंट है, तो आपको 12 मंथ्स तक फ्री सर्विसेज मिलती है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री टीयर। बिगिनर्स के लिए या फिर जो लर्निंग पर्सन है, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आपको फ्री में सर्वर लॉन्च करने मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें करने मिल रही है। बट नॉट ऑल द फैसिलिटीज कैन बी यूज। मतलब क्या है कि अभी सर्वर है तो आप बहुत बड़े सर्वर नहीं बना सकते हो। देर आर सम सर्वर टाइप्स दैट आर अंडर फ्री टीयर। तो कुछ सर्विसेज, कुछ लिमिटेशंस होती है, तो जो भी हम बताएंगे जस्ट यू नीड टू फॉलो इट। अगर आप एक्स्ट्रा करते हो देन वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द अमाउंट दैट इज डिडक्टेड। अब अभी अभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ चलो कर देते हैं, क्या है, बट फिर लास्ट में मंथली आपको बिल जनरेट होगा। तो अभी जो स्टेप्स हम करने वाले हैं आज, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अवॉइड एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है, ठीक है।
बाद में आप R&D या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें करते बैठो, फिर जब आप पूरा प्रैक्टिस हो जाएंगे आपकी, पूरा आपने लर्न कर लिया AWS, उसके बाद फिर आप R&D करो। बट अभी इस स्टेज पे नहीं करना है आपको, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट डू साइड बाय साइड क्रिएशन ऑफ द अकाउंट, ठीक है। ये अब बाद में आप आराम से कर लो, अगर कुछ दिक्कत आती तो हम कल और करेंगे। बट अभी इस केस में अभी इमीडिएट साइड बाय साइड क्रिएट अकाउंट ये वो क्लिक करना ये मत करना, अभी सिर्फ ध्यान से सुन लो कैसे बनाना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अकाउंट फॉर वन ऑफ द like one of our student, so because I need to show something, right? That's why I need one email, one account name and everything. So just I will grab the things, and please remember I am stopping my screen just to like enter these things. जब मैं enter करूँगा उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। Just for a moment I will be stopping my screen. So thanks Gurdakar for giving the email. So what I will do, I will again share the screen. So I'm putting the email and account name. I'm just verifying the email. So can you just go to this email and please, okay, wait. Everyone is looking at the screen? Yes. So as soon as I entered the email and also the account name कुछ भी दे दो आप। जैसे मैंने email put किया तो एक OTP आया होगा email के ऊपर, ठीक है। So that OTP I need as a verification code here. Uh, Let me take that OTP here. So you need to log in to this email that you have provided, and you may find their verification code. तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो मुझे जस्ट शेयर करना है आपको। Okay, so it's just verify it. If everything is correct, email address has been successfully verified. जब आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाता है, अब ये ईमेल जो है ना आपका, ये रूट ईमेल होगा। कौन सा? रूट ईमेल। सो दिस इज, यू हैव टू बी लाइक, ऐसे कोई भी ईमेल मत लेना, सब चीज मतलब प्रॉपर जो है वही देना है आपको। कुछ भी ऐसे ही मतलब फेक वगैरह मत देना इधर, कुछ भी, कुछ जरूरत ही नहीं है फेक करने की कुछ भी यहाँ पे। तो रूट यूजर पासवर्ड आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं पासवर्ड क्या करता हूँ रूट यूजर का, मेरे हिसाब से एक सेट कर देता हूँ, बाद में फिर कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हो आप। सो जस्ट हियर इफ यू सी, जस्ट वेट। Yes, so here password is needed, and it will be like uppercase, lowercase and so many others, so it has to be combination। तो नीचे लिख के आएगा आपको ऐसे, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज इट्स ऑलरेडी बीन सजेस्टिंग मी। सो सजेशन ऑफ करना चाहिए था मैंने पहले ही, बट लीव इट। तो यहाँ पे आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देना है जिसमें अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे कि @ एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब चीज़ होती है। सो सो ये आ गया। देखो अपर केस आना चाहिए, लोअर केस आना चाहिए, नंबर आना चाहिए अंदर, और नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आना चाहिए, मतलब @ 1 2 3 वगैरह होता है ना उस टाइप में। सो अभी मैंने सिंपल रखा है मेरा पासवर्ड है, तो मैं बाद में शेयर करता हूँ। नाउ जस्ट लेट मी अगेन reconfirm it. Okay, here it is. Again I am confirming the password.
This is the password I shared you. Okay. Mm, this password I have used. Now continue. अभी ये first step हो गया आपका, ठीक है? This password is publicly known. Look at the intelligence of this AWS. So अभी जो मैंने पासवर्ड डाला था वो बहुत मतलब easy पासवर्ड था और इस सब जगह पे well known पासवर्ड है. So I cannot use that type of password because it is already publicly known. So I will just use some combination here. Um, Let me again check it. मैच होने के बाद ही वो निकल जाता है, ठीक है? So I will share the updated password here. May continue. Yes, I continued. Sign up for AWS. तो ये अभी नेक्स्ट पेज आता है. यहाँ पे देखो. How do you plan to use the AWS? आप AWS के किसके लिए कर रहे हो? So I am not using it for my business, right? So मेरा एक पर्सनल है अपने ओन प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर लर्निंग के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इसमें पर्सनल सेलेक्ट करना है तुमको. यहाँ पे फुल नेम देना है आपको. यहाँ पे नाम डालना है आपको. इंडिया है तो +9 में सेलेक्ट करना है आपको और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना है. आई विल बी जस्ट राइटिंग माई कॉन्टैक्ट नंबर हियर. इट इज. So look at here, I am filling these details because these are some personal details, so I am not going to keep this video on. तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप मेरे को क्या करना है, फोन नंबर लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता है. यहाँ पे लुक, इंडिया सेलेक्ट किया मैंने. यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है? सिटी वगैरह, स्टेट और पोस्टल कोड. अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है फॉर्म ये. एड्रेस का फॉर्म है सिर्फ बस. और यहाँ पे फोन नंबर डालना है. तो अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन. So that this video might be available for someone so that no one can मतलब कुछ होना नहीं बाद में इसके लिए है. So फोन नंबर वगैरह ये हो जाता है. So this is 84. So I will not call the number also. So I just put the number here and I will just write the address because address is also needed here. I'm just filling the details, address. So after doing that, okay, so you just need to check the checkbox of I have read and agreed to the terms. एग्री करके आपको सिर्फ क्लिक कंटिन्यू करना है बस. दैट्स इट. मैंने अभी एड्रेस डाला और कंटिन्यू किया. आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन नाउ. लुक एट हियर, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप देन. सो हियर इफ यू सी, दिस इज माय थर्ड स्टेप. सेकंड स्टेप एड्रेस डाल दिया मैंने, पूरा हर एक चीज अंदर पुट कर दी. ओके, सो हियर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स यू नीड टू पुट. सो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल डालने होंगे. ओके, again I will because here if you see visa, this is the visa. रुपए is also come, right? रुपए भी आ गया है, पहले नहीं था रुपए, ठीक है? तो इन्होंने अभी इसको भी इंक्लूड कर लिया है. एंड अमेरिकन एक्सप्रेस इज आल्सो देयर. एंड ओके, सो मास्टर कार्ड इज देयर. सो मास्टर, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड रुपए is new that added here. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, will not charge you for the usage in a free tier limits. वी मे टेम्पररीली होल्ड $1 अगर यूएस में है तो. और अपना कितना है, ₹2 कटता है अपना, ₹2. सो आई विल जस्ट स्टॉप इट एंड आई विल फिल दिस डिटेल्स.
तो आपको एक्सपायरेशन डेट, सिक्योरिटी कोड ये सब डालना होता है। तब ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सो मैं अभी वीडियो बंद करके इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ, एंड देन लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट, राइट? आई विल स्टॉप माय वीडियो। सो जस्ट मैं अभी इनपुट कर रहा हूँ डिटेल्स। So I already told you that Visa or American Express will be there, and Rupee is not there, but now they will added Rupee also. So it is very good sign. If you have any doubts, then you can ask in between. I'm just filling the details. So it will ask you if you have a PAN or not. So even though if you put yes or no, it will not make any difference. अगर yes बोलते हो तो पैन कार्ड डालना पड़ता है, या उसको आप नहीं भी डाल के भी प्रोसीड कर सकते हो। बट फॉर नाउ आई विल जस्ट पुट यस एंड आई विल जस्ट कंटिन्यू लेटर, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है आपको, डू यू हैव अ पैन। तो मैंने उसको क्या किया है, यस बोला है, बट मैं यहाँ पे पैन नंबर नहीं डालूंगा, ठीक है? तो जो भी है आपका वो रख देना है आप, बट मैं कुछ भी पैन वगैरह नहीं डालूंगा, बट जस्ट आई विल वेरीफाई एंड कंटिन्यू बोलूंगा। इट विल नॉट आस्क मी टू एंटर पैन कार्ड डिटेल्स, तो मुझे पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक है? अभी जस्ट मैंने वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर दिया है थर्ड स्टेप पे। अब ये पेमेंट पेज पे चला गया, ठीक है? तो आई थिंक यू विल गेट द OTP फॉर द पेमेंट ऑफ ₹2। तो ₹2 के पेमेंट के लिए आपको एक मैसेज आया होगा, जस्ट पुट दैट OTP in a WhatsApp. So all these are payment details, so I cannot share my screen now. Just OTP डालना है बस। No, it's not required. Is it a OTP? ये OTP है क्या, नीचे आपने भी दिया है? Yes, okay. And one more thing, your account, like your card or account, has to be there for international transaction. तो उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन होने चाहिए, जैसे कि अभी ये पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं हुआ है अभी, बिकॉज AWS का पेमेंट करते हो तो आपका जो भी ये है ट्रांजैक्शन है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ने अलो करना चाहिए, तभी हो पाता है। तो अभी ये एक कार्ड इनका था, तो इसमें तो नहीं हुआ है। मैं भी दूसरा कार्ड चेक कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो वेदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज अलाउड और नॉट हियर, बट स्टिल आई विल गिव अ ट्राई फॉर अनदर अकाउंट, अनदर कार्ड। इट हैज़ टू बी ऑन, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का याद रखना, अगर वो नहीं है तो आपका नहीं होगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट। अभी मैं दूसरे कार्ड के डिटेल डाल रहा हूँ जो है इसके पास है। आई थिंक आपको मैसेज भी आया होगा, ठीक है, कि आपका बैंक जो है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड नहीं है। आपको एक मैसेज करने के लिए भी बोल रहा हूँ, बट मत करना अगर नहीं करना है तो। सो आई विल अगेन प्रोसीड। फिर से वो मुझे पेमेंट गेटवे पे लेकर गए, एंड यू विल अगेन गेट OTP। फिर से OTP आया होगा।
इस बार होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और कोई कार्ड लेना पड़ेगा। डबल। चेक इफ इट्स वर्किंग। यस, नाउ इट वर्क। अभी वर्क हो गया ये। ठीक है, एक कार्ड में नहीं था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसलिए नहीं हुआ था। ये दूसरे कार्ड से किया तो हो गया, ठीक है। आई थिंक इट्स करेक्ट, राइट गुरुदार का? आई थिंक नाउ द पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल एंड यू विल, इट विल टेक यू टू द न्यू पेज हियर। तो अभी देखो यहाँ पे एक नया पेज आपको दिख जाएगा, मैं शेयर करता हूँ फिर से स्क्रीन। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, स्टेप 3 को कंप्लीट किया है। स्टेप 3 में क्या था कि पेमेंट के डिटेल्स वगैरह देने थे, दैट्स इट। तो अभी ये वेरिफिकेशन का यही नाम मैं रखता हूँ, राजेंद्र दारकर। अब यहाँ पे प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट करना होता है। सो ये मेरा पर्सनल यूज़ है, क्या रिसर्च है, क्या क्या करना है, एकेडमिक है। तो अभी मैं एकेडमिक यूज़ करूँगा। ओनरशिप इंडिविजुअल है, मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। सो इंडियन डॉक्यूमेंट टाइप कुछ है तो वो देना है, नहीं है तो छोड़ देना है। शायद ये नहीं पूछेगा, परमानेंट है, रिक्वायर्ड है। सपोज इफ आई यूज फॉर द individual, then this is also one of the mandatory requirement that they put here. So earlier this was not there, but they just enforced that PAN number is compulsory here. तो शायद ये डालना पड़ेगा। ओके, यू selected PAN as yes, might be the case। मैंने सेलेक्ट किया था पैन को यस बोल के, तो उस वजह से भी हो गया होगा। सो डोंट वरी, इट विल नॉट बी लाइक, अपना तो इतना ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं है इस पे, ठीक है। ये किसके लिए होता है कि जिनका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसके लिए पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है इनकम को बताने के लिए। बट यहाँ पे तो हमारा तो पर्सनल यूज़ के लिए है, तो पैन के लिए नो ही बोल देना अभी, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे उसने बोला नहीं, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया था। बट यू जस्ट सेलेक्ट नो देयर, है ना, पैन के जगह पे नो सेलेक्ट करना है तुमको। सो अगेन आई विल स्टॉप माई स्क्रीन। सो बिकॉज देयर पैन नंबर इज needed here। तो हम लोग इधर पैन नंबर अभी डालते हैं। ठीक है, फिर आई कंसेंट बोल के कंटिन्यू करना है तुमको। यस आई डिड दैट। आई विल अगेन शेयर द स्क्रीन। अभी कंप्लीट होने में है अभी स्टेप, ठीक है। और सी, टेक्स्ट कंफर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मैं टेक्स्ट मैसेज ले लेता हूँ। इंडिया है तो +91 पे आएगा। मोबाइल नंबर पुट करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे फिर से। आई विल जस्ट पुट अ मोबाइल नंबर हियर, अगेन आई विल स्टॉप द स्क्रीन। आई विल पुट अ नंबर एंड दी कैप्चा। ओके, आफ्टर पुटिंग अ कैप्चा इट इज़ नॉट आस्किंग मी एनीथिंग। सो एक ओटीपी पूछ रहा है अभी वो। मैंने कुछ नहीं, फ़ोन नंबर डाला और कैप्चा डाला, दैट्स इट। इट टेक मी टू द फोर्थ स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द ओटीपी। अगेन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, दैट आई नीड टू वेरीफाई हियर। सो ओटीपी इज आल्सो देयर, आई विल कंटिन्यू इट नाउ हियर। अभी हमारा 90% कंप्लीट हो गया, अभी लास्ट ऑप्शन है सिलेक्शन का।
सो इधर एक सेलेक्ट सपोर्ट प्लान सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो डेवलपर मत लेना, अगर ये लोगे तो $29 पर मंथ आपका बिल कटेगा, तो ये नहीं चूज करना है। बिजनेस सपोर्ट भी नहीं चूज करना है, $100 पर मंथ कटेगा आपका चार्जेस। सो जस्ट सेलेक्ट अ बेसिक सपोर्ट दैट इज अ फ्री। प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज सेलेक्ट बेसिक सपोर्ट दैट इज अ फ्री। सो यही सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। गलती से भी ये मत सेलेक्ट करना है, ये दोनों में से जस्ट अ बेसिक सपोर्ट ही सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट कंप्लीट साइन अप बोलना है। सो it will say you congratulations, thank you for signing up for AWS, we are activating your account, we should only take a few minutes। तो ये होने के बाद आपको गो टू मैनेजमेंट कंसोल बोलना है यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ओके, देन यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर पेज। आफ्टर दैट गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। ये अब यहाँ पे आपको ये पूछता है कि माई रोल इज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका रोल है। एकेडमिक बोला था मैंने। इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो यहाँ पे लिख लो कि माइग्रेशन लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दो, दैट्स इट। फिर यहाँ पे साइन इन टू द कंसोल आएगा, इस पे क्लिक करना है। ये जो आप जब फर्स्ट साइन इन करते हो ना, तब आपको इस तरीके से विंडो आएगा, यहाँ पे रूट यूजर का नाम आएगा, ठीक है। कभी भी आपको रूट यूजर ही सेलेक्ट करना है, ना कि IAM यूजर। तो फर्स्ट बार जब आप लॉग इन करते हो तब आप क्या करोगे, रूट यूजर से लॉग इन करोगे। सो फॉर द रूट यूजर, हमने जब अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे ईमेल रखा था ना, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है। सो दैट इज द रूट ईमेल। सो वो रूट ईमेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यस, so I will just put a email ID, root email। ये ईमेल आईडी है, नेक्स्ट करना है। पासवर्ड जो मैंने सेट किया था उस टाइम पे, तो वही ये पासवर्ड रहेगा। इफ इट्स करेक्ट देन यू विल बी एंटर्ड इनटू द AWS कंसोल ये, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कंसोल दिखेगा। यहाँ पे सर्विस मेनू, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आपको डन बोल देना है। ये सिर्फ आपको एक बताएंगे कि किधर क्या होता है। तो ये आपका कंसोल हो गया, ठीक है। ब्राउजर में आपको ओपन करना है, गूगल क्रोम यूज करो जो कि बेटर रहेगा। सो इन द ब्राउजर यू विल सी दिस पर्टिकुलर विंडो। तो इसी पे आपको काम करना है। जितने भी हमारे सेशंस होंगे तो यही विंडो हम लोग यूज करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर साइट यू आर लॉगिंग इन। सो जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू व्हाट वी डिड। देखो AWS अकाउंट क्रिएशन के लिए व्हाट यू नीड हियर, फर्स्ट वन, टेल मी गाइस। यू नीड वन ईमेल आईडी, ठीक है, जो कि क्या होगा आपका रूट ईमेल रहेगा। इट विल बी योर, ठीक है, ईमेल आईडी सिर्फ, ठीक है, अभी रूट वगैरह बाद में देखते हैं। ईमेल आईडी एक चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक फोन नंबर चाहिए जो कि आपका होगा ही कुछ। थर्ड, व्हाट एल्स, यू नीड अ कार्ड, ठीक है, कार्ड फॉर द ट्रांजैक्शन। सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड फॉर ट्रांजैक्शन विथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन, ठीक है। ये भी एक है, पता नहीं चलता है बट आई थिंक गुरुदाकर यू विल लाइक यू गॉट द मैसेज फ्रॉम द बैंक राइट, कि आपका ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ऑन नहीं था, इसलिए आपका ये ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है, ऐसा आया था कुछ मैसेज। So they will get this type of message if it is not enabled. So this is the third। fourth क्या चाहिए आपको, यस, एड्रेस। तो एड्रेस का इंफॉर्मेशन आपको देना है इधर। बस इतने डिटेल्स भी होंगे तो आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो AWS का। एंड हाउ मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड हियर, कितना अमाउंट डिडक्ट होता है, ₹2। एंड इट इज़ रिफंडेबल, हाँ, इट इज़ रिफंडेबल। कुछ टाइम बाद 2-3 दिन के बाद आपको अकाउंट में ये जो ₹2 है वो रिटर्न आ जाते हैं। इट इज़ नॉट परमानेंट ₹2 डिडक्शन, इट विल बी ओनली वन टाइम। तो बाकी कुछ चार्जेस नहीं है इसके लिए अकाउंट क्रिएशन। इट इज सो सिंपल गाइस सर। सो आफ्टर डूइंग दिस, after doing this you will like entered into this particular
पेज, अब इस पेज का देखो, अब ये कंसोल है, ये कंसोल का एक होम है। तो कंसोल के होम पे आपको यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड दिखेगा। ठीक है, ये पूरा एक डैशबोर्ड टाइप बना है इसने, तुम विजेट को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, पहले इतना ऑप्शन नहीं थे, बट अभी बहुत मस्त हो गया इसमें, तो आपको एप्लीकेशंस और ये सब भी इसमें ऐड कर सकते हो। बट फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, इसके लिए कुछ देखना है नहीं आपको। जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक प्रिपरेशन से, बिकॉज दिस इज आवर न्यू अकाउंट। तो इसमें कोई भी यूजर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपने अभी नया लैपटॉप लिया है तो आपको कुछ यूजर्स नहीं रहते, एक ही यूजर रहता है एडमिनिस्ट्रेटर, उससे आप लॉग इन करते हो। इन द सेम वे वी हैव ओनली वन यूजर, दैट इज दिस पर्टिकुलर रूट यूजर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रूट यूजर क्या होता है। अभी हमने जो लॉग इन किया है ना, वो हमने किस यूजर से लॉग इन किया है? रूट यूजर। उसका नाम क्या है? उसका रूट यूजर। एक मेन यूजर होता है जिसको हम रूट यूजर बोलते हैं। इट इज द मेन user of AWS account which has highest privilege। privilege मतलब क्या? व्हाट इज प्रिविलेज? प्रिविलेज मतलब परमिशंस, मतलब इसको पूरी परमिशंस होती है। मतलब ये अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पेमेंट, मतलब इसको इसको कुछ ये नहीं होता है, मतलब बाउंड ही नहीं होता है। इट हैज ऑल द परमिशंस इन द अकाउंट, ही कैन डू एनीथिंग इन द अकाउंट। यहाँ पे ऐसे कोई चीज नहीं है कि जो रूट यूजर नहीं कर सकता है। ठीक है, so it has all the permissions, so this is very very critical user। so root user is most critical and important। ये यूजर का एक्सेस आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, बट ये जो यूजर है ना, किसी को मिलना भी नहीं चाहिए, राइट? अगर किसी को इसका एक्सेस मिल जाता है, अगर यूजर नेम पासवर्ड कोई गेस कर लेता है, देन योर अकाउंट विल बी इन लाइक वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो अभी क्या करना चाहिए फिर? तो रूट यूजर जो होता है ना, इससे हम काम कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, so this is one of the most important interview question, that are you going to use root user in your day to day activities? तो आप क्या बोलोगे फिर? नेवर। कंपनी में तो आपको रूट यूजर तक जाने ही नहीं देता कोई, रूट यूजर को तो एक्सेस मिलता ही नहीं है। तो ये यूजर आपको मिलता ही नहीं कभी। सो नेवर एवर यूज द रूट यूजर, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजर होता है। इसका अपन सिर्फ कुछ क्रिटिकल काम होते हैं ना, जैसे आपको कुछ अकाउंट का जो सपोर्ट प्लान है वो चेंज करना है, अकाउंट टर्मिनेट करना है, या फिर कुछ और भी चीजें करना है, उसके लिए आप रूट यूजर यूज करते हो। फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज यू आर नॉट यूजिंग द रूट यूजर। सो रूट यूजर विल not be used for daily routine एक्टिविटीज। किसी भी काम के लिए रूट यूजर यूज नहीं करते हम लोग डेली के काम में। ठीक है, सो ओनली, तो अभी रूट यूजर का जो काम है वो कुछ स्पेशल काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो रूट यूजर क्रेडेंशियल्स, credentials must be kept secure and must be kept secure and only used when there are some critical activities like support plan changes या फिर अकाउंट टर्मिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट लिमिटेड, बट कुछ और भी है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऐसे, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम के लिए हम लोग रूट यूजर का यूज करते हैं। फॉर ऑल अदर थिंग्स वी आर नॉट यूजिंग दिस रूट यूजर। व्हाट द पॉइंट है? अभी तक समझे क्या क्या है? रूट यूजर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यूजर बहुत हाई प्रिविलेज होता है, बिकॉज इसको पूरी परमिशंस होती है। तो ये हम लोग नहीं यूज करते कभी। बहुत एक्टिविटी ऐसी है कि जो दूसरे यूजर से नहीं होती है, उसी टाइम पे हम लोग ये यूजर यूज करते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट यूजिंग दिस इन अवर डेली डे टू डे एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज में हम लोग इसको नहीं यूज करते। डेली रूटीन एक्टिविटी मतलब डेली एक्टिविटीज ही होता है। व्हाट द पॉइंट हियर? सिंपल है। सो दिस इज योर रूट यूजर नाउ। अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि आपको अभी रूट यूजर नहीं यूज करना है, देन व्हाट एल्स? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? विथ रूट यूजर आई विल बी क्रिएटिंग अनदर यूजर। ठीक है, मैं रूट यूजर यूज करके एक यूजर बनाऊंगा, जिस यूजर का मैं यूज करूंगा मेरे डे टू डे एक्टिविटीज। सो रूट
we will use, we will be using root user to create the another administrator user for all the activities। कुछ भी एक्टिविटीज के लिए हम लोग एडमिन यूजर यूज करेंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा, जिसके थ्रू हम पूरे काम करेंगे। हम लोग रूट यूजर कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अभी बनाएंगे जस्ट, और उसी का यूज करेंगे। ठीक है। सो देर इज वन सर्विस इन AWS which has this which where we can create the users। so in AWS we have one service where we can create the users। एक सर्विस है AWS में जहाँ पे हम लोग ये यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि रूट यूजर नहीं यूज करना है, तो कौन सा यूजर करना है, तो हम लोग एक एडमिन यूजर बनाएंगे। बट वो यूजर कहाँ पे बनेगा, ये एक सर्विस है AWS में, वहां पे हम लोग ये बनाएंगे। सो क्या है उस सर्विस का नाम, उस सर्विस का नाम है IAM। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सिंपल है। देखो, नाम में ही है पूरे AWS के सर्विसेज के। आइडेंटिटी मतलब क्या, जो भी आइडेंटिटी है, यूजर जो भी है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। एंड एक्सेस मैनेजमेंट मतलब क्या, एक्सेस कैसा देना है उसको, एडमिनिस्ट्रेटर देना है क्या, रीड ओनली देना है, किस तरीके से एक्सेस देना है। तो उसका उतना ही एक्सेस होगा, उतना ही वो काम कर पाएगा। ठीक है। अगर उसको रीड ओनली करेंगे तो खाली देख सकेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द एक्सेस लेवल, रीड एक्सेस, फुल एक्सेस। तो ये हम लोग एक्सेस मैनेज करते हैं और आइडेंटिटीज वहां पे बनाते हैं, जैसे कि यूजर बनाना हो गया। तो ये क्या होता है, एक सर्विस है AWS में जो कि IAM नाम की सर्विस है। ठीक है। व्हाट द पॉइंट हियर, अभी हम लोग एक एडमिन यूजर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अभी हमने रूट यूजर था, उससे हम लोग एक एडमिन यूजर बनाएंगे। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलता है ऊपर कॉर्नर में, एक आपको सर्च बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है IAM। जैसे मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे दिख रहा है मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज, तो इस पे आपको क्लिक करना है सिर्फ। जैसे आप क्लिक करते हो एक IAM सर्विस ओपन होती है। सो दिस इज योर IAM डैशबोर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल। अभी कुछ देखना नहीं है आपको, यहाँ पे सब आपका ऐसे ही 0 0 0 रहेगा। यू जस्ट नीड टू गो टू द यूजर्स हियर। यहाँ पे आपके यूजर 0 है, एक भी यूजर नहीं है इस केस में। ठीक है। आपका एक भी यूजर नहीं है। आपके पास कौन सा यूजर है अभी फिलहाल, बिकॉज आपने लॉग इन तो किया है ना, बट आपके पास एक भी यूजर नहीं, आपके पास रूट यूजर है। ठीक है। ये जो गुरुद्वारा का लिख के आ रहा है ना, ये रूट यूजर है आपका। इट इज नॉट दी IAM यूजर। ये क्या होता है, ये जो भी यूजर आप यहाँ पे बनाते हो ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, IAM यूजर्स। मतलब ये रूट यूजर नहीं होते। ये कौन से यूजर्स होते हैं, IAM यूजर। ये कुछ सर्विस में बनाते हैं हम लोग, IAM सर्विस में बनाते हैं, दैट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ क्रिएट यूजर बोलना है। यहाँ पे नाम दे दो एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी नाम देना दे सकते हो आप अपना भी नाम दे सकते हो। मैंने एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। सो ये आपका यूजर नेम होता है। ठीक है। अभी इसको मेरे को ना AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है। ठीक है। इसको आपको सेलेक्ट करना है, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डेप्थ। जस्ट अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, उतना खाली अभी ध्यान में रखो कि कैसे बनाना है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू मैनेजमेंट कंसोल बोलना है। ठीक है। ये होने के बाद नीचे आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूजर पे क्लिक करना है। मेरे को IAM यूजर बनाना है, इसे उसको बताना है। फिर यहाँ पे कस्टम पासवर्ड ले लो या फिर ऑटो जनरेटेड ले लो। अभी मैं क्या करूंगा, जस्ट ऑटो जनरेटेड पासवर्ड रखूंगा, देन लेटर ऑन आई विल जस्ट चेंज इट। ठीक है। अब यहाँ पे यूजर मस्ट क्रिएट न्यू पासवर्ड टू नेक्स्ट साइन इन, ये वो सब चीज़ है, तो इसको हम लोग अभी डिसेबल रखते हैं और एक यूजर बना लेते हैं। अब यहाँ पे अटैच पॉलिसी करके मैं एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी इसको लगाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लगा देता हूँ, नेक्स्ट कर देंगे और क्रिएट यूजर बोल देंगे। दैट्स इट, द न्यू यूजर हैज बीन क्रिएटेड। और यहाँ पे आपको डाउनलोड CSV फाइल करके आता है, इस पे सिर्फ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव करना है। इट विल बी डाउनलोडेड टू योर लोकल लैपटॉप। ठीक है। अब ये हो गया हमारा यूजर क्रिएशन। नाउ सी द यूजर्स काउंट हैज बीन रीच टू 1। तो मेरा एक यूजर अभी यहाँ पे क्रिएट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। सो डोंट वरी, वी विल बी लाइक क्रिएटिंग द यूजर
एंड मैनेजिंग दी परमिशन, ये सब हम लोग आईएम सर्विस जब सीखेंगे तो उसमें पूरा इन डेप्थ हम लोग करेंगे. बट फॉर नाउ this is only the thing that you need to create after creation of the root user account. First thing is the creation of management user, that is the administrator user. ठीक है, अब ये होता है. तो इसके बाद और एक आपको काम करना है. जस्ट आई विल टेल यू दैट गो टू द बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट. इधर जाना है आपको, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाना है. इधर जाने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा स्किप टूर बोल देना है. ठीक है, हम लोग ये सीखने वाले हैं बाद में. स्किप टूर बोल देना है. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आना है. बजट दिख रहा है यहाँ पे, बजट. जस्ट नोट डाउन द स्टेप्स लेटर ऑन, बिकॉज वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है तो हमको मिल जाएंगे. तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है. तो बजट में जाना है आपको. जैसे बजट में जाते हो आप, क्रिएट अ बजट बोलना है. यूज अ टेम्पलेट. और हम लोग क्या करेंगे कि मंथली कॉस्ट बजट सेट करेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यूज अ टेम्पलेट, मंथली कॉस्ट बजट, और नीचे आके यहाँ पे $0.5 लिखना है. कितना? 0.5. जितनी आपकी कैपेसिटी है ना पे करने की, तो उतना यहाँ पे लिखना है. मैंने अगर $1 लिखा तो मैं $1 मतलब ₹80 अगरचे मेरा बिल भी आता है तो भी मैं भर सकता हूँ. ठीक है. ईमेल रिसिपिएंट में मैं क्या करता हूँ, मेरा खुद का ईमेल आईडी डालता हूँ. ठीक है, gmail.com. लेट मी रिकन्फर्म वंस. ठीक है, अब ये मैंने ईमेल डाल दिया. यहाँ पे $1 सेट किया मैंने मंथली कॉस्ट बजट. बस ये होता है. नाउ सी हियर, you will be notified when your actual spend reaches 85%. मतलब क्या, अगर 0.85 तक बिल जाता है तब मेरे को अलर्ट मिलेगा. ठीक है. योर एक्चुअल स्पेंड रीचेस 100%, तो ये फर्स्ट 1 2 3 होता है ये. बट हम लोग कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्टली टेम्पलेट यूज किया है मैंने, तो क्रिएट बजट बोल रहा हूँ. दैट्स इट. सिंपली आई क्रिएटेड द बजट. अब जैसे आप बजट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है हमारा कि बजट पैरामीटर्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है. अभी मैं तुमको बजट सेट करने का नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे अभी क्या हो गया, जैसे ही मेरा बिल जो है $1 के ऊपर चला जाता है, $1 को रीच होना चालू होता है, तो मुझे एक मैसेज या ईमेल आता है. ईमेल अभी हमने दिया है इसमें. तो मुझे एक ईमेल आता है कि आपका बिल जो है ना ये बढ़ रहा है ना. अलर्ट्स में देखो यहाँ पे, देखो अगर 85% मतलब कितना, $0.85 जब तक आता है, यहाँ पे देखो $0.85 तक मेरा बिल बढ़ जाता है तो मेरे को अलर्ट मिलेगा. जैसे अलर्ट आता है तब आपको बिल चेक करना है किस वजह से बढ़ रहा है, और उसको स्टॉप कर देना है सर्विस को. ठीक है. तो ये आपको सेफ काम करने में मदद करेगा. ठीक है. व्हाट द पॉइंट हियर. वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो दिस यू नीड टू क्रिएट. क्या क्या काम करने हैं आपको, अकाउंट क्रिएशन, फिर उससे आपको आईएम में एक एडमिन यूजर बनाना है. थर्ड, आपको ये बजट सेट करना है. ठीक है, ये 3 काम आपको करने हैं. और एक चौथा काम है, आपको जाना है किधर, यहाँ पे. और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि अकाउंट पे क्लिक करना है. दिस इज योर फोर्थ टास्क. जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिलती है, अकाउंट आईडी, पासवर्ड, बहुत सारी चीज मिलता है. ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है यहाँ पे. ठीक, यहाँ पे क्लोज अकाउंट का भी ऑप्शन रहता है, देख रहे हो आप. जैसे मैं यहाँ पे क्लोज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, मेरा अकाउंट जो है तो क्लोज हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है. मेरे जितने भी सर्वर्स वगैरह सारे बंद हो जाते हैं पूरे. सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लोजर. ये परमिशन खाली रूट यूजर को ही होती है. So that's why we are not using root user for our daily activities. So that's why we are not using it. अभी यहाँ पे जैसे आप ऊपर आते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है आई एम यूजर एंड रोल एक्सेस टू बिलिंग इंफॉर्मेशन. ठीक, अभी हम क्या करेंगे, अभी के लिए इधर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं हम. इन द टुमारो सेशन वी विल जस्ट स्टार्ट विथ आवर आई एम सर्विस. तो हम लोग पहले आई एम सर्विस से स्टार्ट करते हैं. बिफोर कमिंग टू टुमारो सेशन, जस्ट कंप्लीट द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. पहले सभी का अकाउंट क्रिएट होना इज अ मैंडेटरी थिंग, कंप्लीट होना ही चाहिए कल तक. अकाउंट क्रिएट करके आना है, प्लस एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर भी बनाना है आपको. थर्ड, आपको ये जो मैंने बोला ना बजट सेट करना है, ये 3 चीजें करनी है. उसके बाद हम लोग कल आईएम सर्विस को स्टार्ट लेते हैं. फिर आप कैसे यूजर्स बनाने, क्या क्या करने हैं, उसको कैसे परमिशंस मैनेजमेंट वगैरह बहुत सारी चीजें आती है अंदर.
वो हम लोग कल से फिर स्टार्ट करेंगे. So now I think we entered into the AWS directly. अभी कुछ अभी बेसिक्स नहीं बाकी है, जस्ट हम अभी डायरेक्ट AWS अभी लर्न कर रहे हैं. सो प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारा लोड आएगा अभी. सो बिफोर दैट just revise the sessions that we already covered, right? So shall we stop at this point, guys? Yes. Okay. Thank you, guys. Thank you for attending this session. We will continue tomorrow, same time.